N-acetyl glucosamine residues, and attached to each of the muramic acid molecules is a tetrapeptide consisting of both D and L amino acids, the precise composition of which differs from one bacterium to another. Um, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टेट्रापेप्टाइड ये इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है, यहाँ पर ऐसे शो किया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट बैक्टीरियम के अंदर डिफरेंट होती है। टू ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स आर वर्दी ऑफ स्पेशल मेंशन: diaminopamelic acid, which is unique to bacterial cell walls, and D-alanine, which is involved in cross-links between the tetrapeptides and in the action of penicillin. Note that this tetrapeptide contains the rare D isomers of amino acids. Most proteins contain the L isomer. The other important component in this network is the peptide cross-link. ये देखें, right here, peptide interbridge, जो कि दोनों tetrapeptides को link कर रही है, between the two tetrapeptides. The cross links vary among species. Different species के अंदर different cross links होते हैं. In Staphylococcus aureus, for example, 5-glycine link the terminal D-alanine to penultimate L-lysine. Because peptidoglycan is present in bacteria but not in human cells, it is a good target for antibacterial ड्रग्स, ठीक है। जितने भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स सिर्फ इस तरह बैक्टीरिया को किल कर पाएंगे, ह्यूमन सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। Several of these drugs, such as penicillin, cephalosporins, and vancomycin, they inhibit the synthesis of peptidoglycan by inhibiting the transpeptidase that makes the crosslinks between the two adjacent tetrapeptides. अब मोस्टली ये जो ड्रग्स होती हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, इनकी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं, आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं जो कि इन दो टेट्रापेप्टाइड्स के दरमियान क्रॉस लिंकिंग का काम करता है या क्रॉस लिंक्स बनवाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक टेबल में इन्होंने ग्राम स्टेन को एक्सप्लेन किया हुआ है, सो लेट्स गो थ्रू इट. This staining procedure, developed in 1884 by Danish physician Christian Gram, is the most important procedure in microbiology. It separates most bacteria in two groups: the gram-positive bacteria, which stain blue, and the gram-negative bacteria, which stain red. यानी कि इसने बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर दिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ग्राम स्टेन में कौन से 4 प्रोसीजर्स होते हैं? नंबर 1 इज़ द क्रिस्टल वायलेट डाई स्टेन्स ऑल द सेल्स ब्लू और पर्पल। जो इसमें डाई इस्तेमाल होगी वो सबसे पहले जितने भी सेल्स हैं उनको ब्लू स्टेन कर देगी या पर्पल स्टेन कर देगी। Number 2, the iodine solution, which is a mordant, is added to form a crystal violet iodine complex. All cells continue to appear blue. मॉर्डेंट किसी भी केमिकल को कहते हैं जो डाई को की फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। तो उन्होंने कहा है कि आयोडीन सोल्यूशन जो है वो ऐड किया जाता है फिर, जो कि एक क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना देता है। इस के प्रोसेस के इस स्टेप के बाद भी सारे सेल्स ब्लू ही अपेयर होते हैं। नंबर 3 में क्या होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन और एथेनॉल extracts the blue dye complex from the lipid-rich, thin-walled gram-negative bacteria to a greater degree than that from the lipid-poor, thick-walled gram-positive bacteria. यानी कि जो इसके इस नंबर 3rd स्टेप पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, या तो एसीटोन या एथेनॉल, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में से ब्लू डाई एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। जिसकी वजह से the gram negative organisms they appear colorless, whereas the gram positive bacteria they remain blue, ठीक है। नंबर 4 पे they say कि the red dye safranin stains the decolorized gram negative cells red or pink and the gram positive remains blue, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है ये सारा प्रोसेस हो गया। सबसे पहले तमाम सेल्स को क्रिस्टल वायलेट डाई ने ब्लू स्टेन किया, फिर आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया गया, उससे एक क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया। इस प्रोसेस के इस स्टेप के बाद भी सारे सेल्स अभी ब्लू ही अपेयर हो रहे हैं। नंबर 3 पर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया सच एज एसीटोन और एथेनॉल, जिसने हमारे पास ग्राम नेगेटिव में से ब्लू डाई को एक्सट्रैक्ट कर लिया और ब्लू जो ग्राम नेगेटिव है वो कलरलेस अपेयर हुआ।
नंबर 4 पर रेड डाई ऐड की सैफरनिन, जिसने ग्राम नेगेटिव सेल्स को रेड स्टेन कर दिया। अब क्या यूजेस होते हैं ग्राम स्टेनिंग के? इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी बैक्टीरिया एंड इन इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक, बिकॉज इन जनरल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे आर मोर ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन जी देन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी कि कौन सी एंटीबायोटिक हमने चूज़ करनी है फॉर किलिंग बैक्टीरिया, उसको भी उसको भी चूज़ करने में ये प्रोसेस हेल्प करता है। सो हाउएवर नॉट ऑल बैक्टीरिया कैन बी सीन इन द ग्राम स्टेन, ठीक है। और इस टेबल 2.3 के अंदर, इस टेबल के अंदर वो सारे बैक्टीरिया उन्होंने बताए हुए हैं जो कि ग्राम स्टेनिंग के थ्रू नहीं व्यू किए जा सकते, और उसकी रीजंस बताई हुई हैं, ठीक है। Here they say कि note that it takes approximately 100,000 bacteria per ml to see one bacterium per microscopic field using oil immersion lens. Okay, so sensitivity of gram stain procedure is low. इस process की sensitivity कम होती है. This explains why a patient's blood is rarely stained immediately, but rather is incubated in blood cultures overnight to allow bacteria to multiply. One important exception into this is meningococcemia, in which very high concentrations of Neisseria meningitidis can occur in blood. अच्छा, अब ये हम उन बैक्टीरिया को देख लेते हैं जो कि ग्राम स्टेनिंग के थ्रू नहीं देखे जा सकते। उसमें माइकोबैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम tuberculosis. इसकी रीज़न क्या है? इट इज़ टू मच लिपिड, देयर इज़ टू मच लिपिड इन द सेल वॉल, सो डाई कैन नॉट पेनिट्रेट, ठीक है। तो इसकी जो अल्टरनेटिव अप्रोच है दैट इज़ एसिड फास्ट स्टेन। ट्रिपोनिमा पैलिडम, इट इज़ टू थिन टू सी। इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या फिर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी के थ्रू हम व्यू करते हैं। देन कम्स माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, इसके अंदर कोई सेल वॉल ही नहीं होती और ये होता भी बहुत छोटा है, इसकी वजह से हम इसमें ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकते। लीजनेला न्यूमोफिला, आई थिंक यही लिखा हुआ है। इसमें क्या रीज़न है? देयर इज़ पुअर अपटेक ऑफ रेड काउंटर स्टेन। और क्लेमाइडिया में क्या रीज़न है कि ये इंट्रासेलुलर होती है और बहुत स्मॉल है। इसी तरह रिकेट्सिया, इट इज़ इंट्रासेलुलर वेरी स्मॉल। तो ये सारी रीजंस हैं। Now comes lysozyme. It is an enzyme which is present in human tears, mucus, and saliva, which can cleave the peptidoglycan backbone by breaking its glucosyl bonds. हमने पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर जो ग्लूकोसाइल बॉन्ड्स हैं उनको ये एंजाइम लाइसोजाइम, जो कि हमारे म्यूकस में, टीयर्स में प्रेजेंट होता है, उनको ये एंजाइम किल कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, thereby contributing to the natural resistance of the host to microbial infection. यानी अगर इन पाथवेज के थ्रू बैक्टीरिया की एंट्री हो रही है बॉडी के अंदर, तो ये एंजाइम्स जो कि टीयर्स, म्यूकस, सलाइवा में है, वो बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए, इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाए। Lysozyme treated bacteria may swell and rupture as a result of the entry of water into the cells which have a high internal osmotic pressure. However, if the lysozyme treated cells are in a solution with the same osmotic pressure as that of the bacterial interior, they will survive as spherical forms called protoplasts surrounded by only a cytoplasmic membrane. अगर तो किसी ऐसी environment में है जहाँ पर अंदर प्रेशर बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो स्वेल कर जाएंगे और रप्चर कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर भी और बैक्टीरियल सेल के बाहर भी सेम है, तो फिर वो प्रोटोप्लास्ट की फॉर्म में सर्वाइव करेंगे, ठीक है। Alright, now let's discuss about lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide (LPS) is the outer membrane of cell wall of gram-negative bacteria as endotoxin. It is also termed as endotoxin, और ये सिर्फ gram-negative bacteria के अंदर present होता है. It is responsible for many of the features of disease such as fever and shock, especially hypotension, caused by these organisms. यानी कि fever, hypotension, shock, ये सारी conditions जो है वो LPS की वजह से होती हैं. It is called endotoxin because it is an integral part of cell wall, in contrast to exotoxins which are actively secreted from the bacteria. तो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में क्या डिफरेंस है कि एंडोटॉक्सिन सेल वॉल का इंटेग्रल पार्ट है, कंपोनेंट है, जबकि जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो बैक्टीरिया से एक्टिवली सिक्रीट हो जाते हैं. दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल वॉल.
ठीक है. The constellation of symptoms caused by the endotoxin of one gram negative bacteria is similar to another, but the severity of symptoms can differ greatly. यानी कि जो symptoms हैं वो same होंगे लेकिन symptom severity differ कर सकती है. In contrast, the symptoms caused by exotoxins of different bacteria is usually quite different. अब 3 डिस्टिंक्ट यूनिट्स में लिपोपोलीसेकेराइड एग्जिस्ट करता है. यहाँ पर इन्होंने शो भी किया हुआ है. देयर इज़ अ पोलीसेकेराइड, दिस इज़ अ लिपिड ए कंपोनेंट एंड दिस इज सोमैटिक और ओ एंटीजन. सो फिगर में एंडोटॉक्सिन दिखाया हुआ है. ओ एंटीजन एक्सटीरियर की तरफ है, लिपिड ए इंटीरियर की तरफ है. तो नंबर 1 पे दे से अ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड लिपिड ए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिक इफेक्ट्स. जितने एंडोटॉक्सिन के जितने भी टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो इसकी वजह से होते हैं. और नंबर 2 अ कोर पोलीसेकेराइड ऑफ 5 sugars linked through keto deoxy ऑक्ट्यूलोनेट टू लिपिड ए. यानी कि इस लिंक के थ्रू एक पोलीसेकेराइड है वो इसका आउटर कंपोनेंट है, सॉरी वो इसका कोर बना रहा है. ठीक है. और फिर देयर इज़ एन आउटर पोलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ अप टू 25 रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ 3 to 5 sugars. ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है. दिस आउटर polymer is the important somatic or O antigen of several gram-negative bacteria that is used to identify certain organisms in the clinical lab. Some bacteria, notably members of the genus Neisseria, they have an outer lipo-oligosaccharide containing very few repeating units of sugar. तो ये इन्होंने जनरली एंडोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर बताया जिसमें इन्होंने कहा कि इनर लिपिड ए कंपोनेंट है, देन कम्स कोर एंड देन कम्स आउटर सोमैटिक ओ एंटीजन कंपोनेंट. लिपिड ए मेजरली टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है और जो इसका ओ एंटीजन है दैट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स. और इसमें एक इन्होंने एक्सेप्शन बता दी है कि जो नाइसेरिया है उसमें आउटर मेम्ब्रेन की आउटर साइड की तरफ देयर इज लिपो ओलिगोसेकेराइड. ठीक है, rather than polysaccharide. Then comes teichoic acid. Teichoic acids, they are fibers located in the outer layer of the gram-positive cell wall and extend from it. ठीक है, so it is the feature of only gram-positive bacteria. They are composed of polymers of either glycerol phosphate or ribitol phosphate. ठीक है, some polymers of glycerol teichoic acid penetrate the peptidoglycan layer and are covalently linked to the lipid in the cytoplasmic membrane, in which case they are called lipoteichoic acid. Others anchored to the muramic acid of peptidoglycan. हम इसको फिर से ऊपर जाके डायग्राम देख लेते हैं जो कि हमने पहले देखी थी. सो या दिस इज टिकोइक एसिड और ये सारा अंदर स्पैन कर रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर को क्रॉस कर रहा है और आप देखिए सेल मेम्ब्रेन पर जाकर यहाँ अटैच हो गया. सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड कंपोनेंट है एज देव जस्ट मेंशन्ड उसके साथ जाके ये attach हो गया. So in this case it's called lipoteichoic acid. The medical importance of teichoic acid lies in their ability to induce septic shock when caused by certain gram-positive bacteria. gram-positive bacteria ने जब septic shock induce करना होता है तो उनका कौन सा component involved होता है? teichoic acid. That is, they activate the same pathways as does endotoxin in gram-negative bacteria. Teichoic acids also mediate the attachment of staphylococci to the mucosal cells. This is important, you need to memorize it. Gram-negative bacteria do not have teichoic acids. So, ये difference है. Then comes cytoplasmic membrane. Just inside the peptidoglycan layer of the cell wall lies the cytoplasmic membrane. हमने अभी भी डायग्राम के अंदर ऊपर देखा था, फिर से दिखा देती हूँ, आप उसको अच्छे से देख लें बिकॉज उसी डायग्राम को इन व्यू रखते हुए हम सब कुछ डिस्कस करें. ये हमने देख लिया टिकोइक एसिड्स था, ये सेल मेम्ब्रेन है एंड सेल मेम्ब्रेन फॉर श्योर दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होगी. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में दे से कि let's see, which is composed of a phospholipid bilayer similar in microscopic appearance to that in the eukaryotic cells. They are chemically similar, but eukaryotic membranes contain sterols, whereas prokaryotes generally do not. So this is the exception. Eukaryotic membranes के अंदर sterols होते हैं और mostly prokaryotic membranes के अंदर sterols नहीं होते. वो वाहिद प्रोकैरियोट जिसकी मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स होते हैं दैट इज़ द जीनस माइकोप्लाज्मा. द मेम्ब्रेन हैज़ 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस. क्या 4 फंक्शंस होते हैं मेम्ब्रेन के? नंबर 1, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल.
अच्छा, सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ज़ाहिर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के थ्रू होगी. नंबर 2, एनर्जी जनरेशन बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑलराइट. नंबर 3, सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स ऑफ द सेल वॉल. एंड नंबर 4, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स. ठीक है, तो ये 4 मेन इसके फंक्शंस हैं. साइटोप्लाज्म अब हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म में व्हाट वी हैव टू स्टडी. इसके दो डिस्टिंक्ट एरियाज होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर डिस्टिंग्विश करते हैं. नंबर 1 इज एन amorphous matrix that contains ribosomes, nutrient granules, metabolites and plasmids, and there is an inner nucleoid region which is composed of DNA. तो cytoplasm distinguish हुआ होता है into an outer layer and an inner layer. सही है. इनर रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए है. Ribosomes. Bacterial ribosomes are the site of protein synthesis as in eukaryotic cells. हम इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. But they differ from eukaryotic ribosomes in size and chemical composition. Bacterial ribosomes are 70s in size with 50 and 30s subunits, whereas eukaryotic ribosomes are 80s in size, 60 and 40s subunits. ठीक है, ये दोनों large and small ribosomal subunits होते हैं ना, तो उनका बताया हुआ है. The differences in both ribosomal RNAs and proteins constitute the basis of the selective action of several antibiotics that inhibit bacterial but not human protein synthesis. यानी कि ये जो राइबोसोम्स हैं, देर वी नो दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स. अब ये जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, ये ह्यूमन सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ होते हैं, और जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके अंदर ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं राइबोसोम्स को, ये मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स. तो उस बेसिस पर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरियल सेल्स को किल करती हैं लेकिन ह्यूमन सेल्स को नहीं करती, या बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं लेकिन ह्यूमन सेल्स के अंदर नहीं करती. Granules. The cytoplasm contains several different types of granules that serve as storage areas for nutrients and stain characteristically with certain dyes. ठीक है, ग्रैन्यूल्स का क्या फंक्शन होता है? स्टोरेज फंक्शन, और डिफरेंट डाइज के साथ ये स्टेन भी हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, वॉल्यूटिन. Volutin is a reserve of high energy stored in the form of polymerized metaphosphate. क्या इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया? Volutin. Volutin is a reserve of high energy stored in form of polymerized metaphosphate. It appears as a metachromatic granule since it stains red with methylene blue dye instead of blue as one would expect. तो वॉल्यूटिन जो है ये रेड स्टेन होता है, और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, द कॉज ऑफ डिप्थेरिया. तो ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये इस बैक्टीरियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. Now comes nucleoid. It is the area of cytoplasm in which DNA is located. DNA of prokaryote is single circular molecule with a molecular weight of 2 into 10 raised to power 9 and contains about 2000 genes. जबकि जो ह्यूमन डीएनए उसके अंदर 100,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं. सो न्यूक्लियोइड जो है, क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता, कोई माइटोटिक स्पिंडल, कोई हिस्टोन्स नहीं होते, तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस से ये बहुत डिफरेंट होता है. इनफैक्ट यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को तो हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं ना, लेकिन इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. वी इवन डोंट कॉल इट अ न्यूक्लियस. One major difference between bacterial DNA and eukaryotic DNA is that the bacterial DNA has no introns and whereas eukaryotic DNA does. तो जो बैक्टीरियल डीएनए उसके अंदर कोई इंट्रॉन्स नहीं होते. इंट्रॉन्स बेसिकली वो जीन के सेगमेंट्स होते हैं जो कि रिमूव हो जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं होते, लेकिन फिर भी वो बैक्टीरियल डीएनए के अंदर नहीं प्रेजेंट होते, यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं. Now comes plasmids. So plasmids बहुत important है. They are extra chromosomal double-stranded circular DNA molecules. So they are basically extra chromosomal double-stranded circular DNA molecules that are capable of replicating independently of the bacterial chromosome. इनका कोई ताल्लुक नहीं होता bacterial chromosome से, इनकी independent replication है. Although plasmids are usually extra chromosomal, they can be integrated into the bacterial chromosome.
ठीक है, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर भी इंटीग्रेट हो जाते हैं, और ये दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स होते हैं। एक सेल के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 इज़ द transmissible plasmids. They can be transferred from cell to cell by conjugation, as the name indicates. ठीक है, वो उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है conjugation के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट सेल्स के दरमियान। दे आर लार्ज, ये लार्ज होता है, मॉलिक्यूलर वेट 40 to 100 मिलियन के दरमियान होता है। सिंस दे कंटेन अबाउट अ dozen genes responsible for the synthesis of the sex pilus and for the enzymes required for transfer. तो इनके अंदर इतना ज़्यादा जो genes होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पाइलस, और जो भी ट्रांसफ़र के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी सिंथेसिस के लिए। सो दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन अ फ्यू कॉपीज़ पर सेल। ठीक है, तो इनकी फ्यू कॉपीज़ ही होती हैं। नंबर 2 हमारे पास नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स हैं। ये छोटे होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट इज़ बिटवीन 3 to 20 मिलियन, और दे डू नॉट कंटेन ट्रांसफ़र जीन्स। तो सिंस दे आर नॉन ट्रांसमिसिबल, ट्रांसफ़र जीन्स नहीं होते, ये इनकी कॉपीज़ पर सेल ज़्यादा होती हैं, मोस्टली 10 to 60 कॉपीज़ पर सेल होती हैं। ठीक है, प्लाज्मिड्स जो हैं वो अपने अंदर जीन्स कैरी करते हैं। इनकी मेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विच इज़ मीडिएटेड बाय अ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। सो प्लाज्मिड्स जो एंजाइम्स बनाते हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स जो मीडिएट करते हैं, वो उनका बेसिकली पर्पस ये होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है। Number 2 is resistance to heavy metals such as mercury, which is the active component of some antiseptics like methylate and mercurochrome, and silver, which is mediated by a reductase enzyme. तो पहला हमने फंक्शन देख लिया प्लाज्मिड्स का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। नंबर 2 है हैवी मेटल रेजिस्टेंस, जिसमें मर्करी और सिल्वर मेन आ जाते हैं। नंबर 3 इज़ रेजिस्टेंस टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, विच इज़ मीडिएटेड बाय डीएनए रिपेयर एंजाइम्स। ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है उसको भी रेसिस्ट करते हैं ये प्लाज्मिड्स जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह द पिलाई और द फिम्ब्रियाई विच मीडिएट द एडेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू एपिथेलियल सेल्स। Number 5, exotoxins including several enterotoxins. Other plasmid encoded products of interest are as follows. कौन कौन से प्लाज्मिड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं? नंबर 1, बैक्टीरियोसिन्स। बैक्टीरियोसिन्स क्या हैं? दे आर टॉक्सिक प्रोटीन्स which are produced by certain bacteria that are lethal for other bacteria. ये ऐसी टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं जो कुछ बैक्टीरिया बनाती हैं और अदर दूसरे बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं। सो 2 common mechanisms of action of bacteriocins are: number 1, degradation of bacterial cell membrane by producing pores in the membrane, and number 2, the degradation of bacterial DNA by DNase. किस तरह बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं? या तो मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बना के पूरा सेल तबाह कर दिया, या फिर जो डीएनए है बैक्टीरिया का उसको डिग्रेड कर दिया। एग्जांपल्स क्या हैं बैक्टीरियोसिन्स की? दे आर कोलिसिन्स विच आर मेड बाय एस्चेरिशिया कोलाई, एंड पायोसिन्स विच आर मेड बाय Pseudomonas aeruginosa. I hope I am pronouncing it in the right way. Bacteria that produce bacteriocins have a selective advantage in the competition for food sources over those that do not. अब जिनके अंदर bacteriocins है वो उनके अंदर ये एडवांटेज है कि वो बाकी बैक्टीरिया को किल करके जो फूड सोर्सेज हैं उन पर काबू पा सकते हैं, वो खुद हासिल कर सकते हैं। However, the medical importance of bacteriocins is that they may be useful in treating infections caused by antibiotic resistant bacteria. तो मेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है बैक्टीरियोसिन्स की? कि ये वो इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कॉज करते हैं। और ये करते किस तरह है? क्योंकि ये डायरेक्टली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उनको किल कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। Number 2, nitrogen fixation enzymes in rhizobium in the root nodules of legumes. um, legumes. इसके बाद है tumors caused by agrobacterium in plants. Several antibiotics produced by Streptomyces, a variety of degradative enzymes that are produced by Pseudomonas and are capable of cleaning up environmental hazards.
such as oil spills and toxic chemical waste bites. तो ये सारे हमने plasmid encoded products पढ़ लिए. ठीक है. Now comes transposons. They are pieces of DNA that move readily from one side to another, either within or between the DNAs of bacteria, plasmids, and bacteriophages. प्लाज्मिड्स क्या है? ये डीएनए के ही पीसेस हैं, लेकिन दे आर मोबाइल. वो एक डीएनए के एक रीजन से कट ऑफ होके या फिर रेप्लिकेट करके किसी दूसरे रीजन में जाके अटैच हो जाते हैं, बट या फिर किसी दूसरे डीएनए पे भी जाकर ये मूव कर लेते हैं और वहाँ पर कहीं और साइड पे जाके लग जाते हैं. Because of their unusual ability to move, they are nicknamed as jumping genes. Some transposons move by replicating their DNA and inserting the new copy into another site, which is replicative transposition, whereas others are excised from the site without replicating and then inserting into a new site, which is direct transposition. So ये मैंने आपको पहले ही बताया, there are two types, direct and replicative. Direct में cut off होंगे एक जगह से और वही वाला जीन कहीं और जाके लग जाएगा, जबकि रेप्लिकेटिव में वो जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर भी रहेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और कहीं और नई लोकेशन पे जाके लग जाएगा. सो ट्रांसपोजोन्स कैन कोड फॉर ड्रग रेजिस्टेंट जीन एंजाइम्स, toxins, or a variety of metabolic enzymes, and can either cause mutations in the gene into which they insert or alter the expression of nearby genes. ठीक है, तो ये इनके नुकसान ये हो सकते हैं. Transposons के 4 identifiable domains हैं. On each end is a short DNA sequence of inverted repeats. ये वाला region, ठीक है, ये दोनों ends पर present है, which are involved in integration of transposon into the recipient DNA. ये जो inverted repeats है ना, ये उस transposon को basically जो DNA जहाँ पर जाके उसने लगना होता है वहाँ पर integrate करता है. The second domain is the gene for transposase. ये ट्रांसपोजेज जीन है, विच इज़ द एंजाइम दैट मीडिएट्स द एक्सिजन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस, जो कि ट्रांसपोजोन को वहाँ से उतरवाता है उस रीजन से और कहीं और जाके अटैच करवाता है. एंड द थर्ड रीजन इज द जीन फॉर रिप्रेसर that regulates the synthesis of both the transposase and the gene product of the fourth domain, which in many cases is an enzyme mediating the antibiotic resistance. तो इसमें क्या क्या हमने regions देख लिए, कौन कौन से domains हैं transposons के. inverted repeats है जो कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसपोजोन में इन्वॉल्व है. फिर सेकेंड डोमेन ट्रांसपोजेज जीन का है, ठीक है, जो कि एक्सिजन और इंटीग्रेशन करवा रहा है. थर्ड रीजन रिप्रेसर जीन का है. नंबर 4 एंड फोर्थ डोमेन जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का है. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस genes जो हैं, they are transferred from one bacterium to another primarily by conjugation. conjugation के process के through जो antibiotic resistance genes हैं वो एक bacterium से दूसरे bacterium में transfer हो सकते हैं. This transfer is mediated primarily by plasmids, but some transposons called conjugative transposons are capable of transferring antibiotic resistance as well. तो यू नीड टू मेमोराइज, हमने पहले भी पढ़ा था प्लाज्मिड्स की मेडिकल इंपॉर्टेंस में कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में इन्वॉल्व है. सिमिलरली सम कॉन्जुगेटिव ट्रांसपोजोन्स दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. In contrast to plasmids or bacterial viruses, transposons, they are not capable of independent replication. They replicate as part of the DNA in which they are integrated. More than one transposon can be located in the DNA. एक DNA में एक से ज़्यादा transposons भी हो सकते हैं. For example, a plasmid may contain several transposons carrying drug-resistant genes. ठीक है? Insertion sequences are a type of transposons that has fewer bases, almost 800 to 1500 base pairs, since they do not code for their own integration enzymes. So insertion sequences वो transposons हैं जिनके अंदर fewer bases होती हैं. They can cause mutations at their site of integration and can be found in multiple copies at the ends of larger transposon units. So this is it for today. We have gone through the structures which are present um, within this structure outside the cell wall. इसको हम बाद में पढ़ेंगे. सेल वॉल और द स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल वो हमने ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू इट, यानी कि ये वाले अच्छा इस टेबल को हम सबसे एंड पे ही देखेंगे. वी हैव गॉन थ्रू सेल वॉल, वी हैव गॉन थ्रू सेल wall of acid fast bacteria, we have gone through the composition of cell wall, we have gone through Gram staining procedure, lysozyme, lipopolysaccharide,
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। सो दैट्स इट।